कि वचन भंग किया कि नहीं किया? क्या राम जी की भूमि में वचन भंग को माफ किया जाता है? राम जी की परंपरा में वचन को तोड़ा जाता है? Coming up on the show, Amit Shah pulls out the hardline card again, calls Azamgarh a terrorist base. बुराई करने से हिंदुस्तान आगे नहीं जाता। आप मुझे मजबूत फरमान दीजिए। बुराई करने से हिंदुस्तान आगे नहीं जाता। आप मुझे मजबूत फरमान दीजिए। 36 hours to go before a crucial polling phase in the Hindi heartland. And the Modi electoral bandwagon stormed into eastern Uttar Pradesh today. All guns blazing. There was drama, there was controversy, and ample political tug-of-wars as Narendra Modi broke the unsaid norm of avoiding a bigwig's constituency. Narendra Modi arrived here in Amethi, the very first direct contest between Narendra Modi as he takes on Rahul Gandhi on his very home turf right here in Amethi itself. The numbers are big, a big turnout in terms of the people wanting to attend this rally by Narendra Modi. But will they be able to convert this number into votes for Smriti Irani, the candidate for the BJP from Amethi? We'll have to see how this contest plays out. But for the time being, symbolically at least, Narendra Modi has sent out a very clear message to Rahul Gandhi that there are no concessions, at least as far as this battle of 2014 is concerned. आज मैं यहां किसी को बुरा भला कहने के नहीं आया हूं दोस्तों। मुझे नहीं कहना है, उनको मुबारक है, डिक्शनरी में जितनी गालियां बोलनी है बोल ले। अभी भी 4 दिन है, 4 दिन है, मजा ले लीजिए, मजा ले लीजिए। मोदी को जो सुनाना है सुना दीजिए। कम से कम आपका गुस्सा निकालने के लिए तो मोदी काम आया। आखिर मोदी तो हर एक के काम आएगा। भाइयों बहनों, मैं अमेठी में हिंदुस्तान की जनता को कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपकी पीड़ा को मेरी पीड़ा बनाने आया हूं। The biggest 2014 face-off is being played out in the Hindi heartland, with Narendra Modi breaking the unspoken code of staying off a rival bigwig's constituency. Modi marched in aggressively into Rahul Gandhi's constituency, challenging the Congress's first family in their own bastion. स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, स्मृति जी मेरे साथ काम करती है। मेरे गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य है, और जब वो राज्यसभा में चुन करके आई तो मेरे गुजरात में जो जिले हैं उसमें जो जरा पीछे है, मैंने स्मृति जी को कहा कि आप राज्यसभा में जो डंका बजाना है बजाना, लेकिन ये जिला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे इस जिले में बदल करके दे दो। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में मैंने जो जिला उनको दिया, एमपी के नाते काम करने के लिए, इतने कम समय में उस जिले को शानदार और जानदार बनाने का काम स्मृति ने करके दिखाया। और तब जाकर के मैंने फैसला किया, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल जिस जिले का होगा, उस जिले में मैं स्मृति जी को भेजूंगा। और मैंने जांच पड़ताल की,
और पाया ये उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है, वो मुझे अमेठी मिल गया। Modi says he has sent Smriti on a mission to Amethi, a mission to develop a constituency which he believes was long ignored by the Gandhis, despite it being a family bastion. But the same politician who refrained from hitting back after a personal attack by Priyanka Gandhi was far more silent this time, after this reaction from Rahul's sister as she was campaigning in Amethi. Smriti Irani has again hit back at Gandhi. Who? Smriti Irani. Modi clearly not letting the Gandhis have an upper hand as far as his candidate's fight in Amethi was concerned. With this remark, Modi is sending a message that Smriti Irani was a force to reckon with in Amethi, even if she is contesting for the first time in the Gandhi fortress. मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा। मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि 1 महीने पहले भेजा मैंने, तब तक उनको अमेठी किस कोने में है मालूम नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं दावा करता हूं, 40 साल से जो परिवार आपसे नाता जोड़ने की बातें करता है, मैं मीडिया के मित्रों में दम हो तो एक काम करके दिखाएं, एक काम करके दिखाएं। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दें, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए, और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। He spared none in his attack on the Gandhis, even hitting out at the late Rajiv Gandhi. But Priyanka hit back within minutes of this attack, claiming that the people of Amethi will not forgive Modi for his attack on a martyr. हमारे राहुल भैया ने कहा कि मोदी जी गुस्से की राजनीति करते हैं। एक नेता ने कहा कि राहुल भैया राजीव गांधी के कदमों पर चलते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल भैया राजीव गांधी के ही कदमों पर चल रहे हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा मोदी गुस्से की राजनीति करते हैं। देश का मीडिया मेरे सामने है, हिंदुस्तान पूरा सुन रहा है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन अमेठी की धरती पर मुझे आज कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ रहा। खोलूं? पूरा खोल दो। एक भी शब्द इधर उधर किए बिना बताता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना सिर्फ हकीकतें बताता हूं। निर्णय आप कीजिए। आप कहते हैं राहुल भैया राजीव जी के कदमों पर चलते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, गुस्से की राजनीति कौन करता है?
कुछ साल पहले जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री। ये एक पार्टी के महासचिव थे। मैं हैदराबाद गए, एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए और पता नहीं राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया की आंख में आंसू निकल आए। In 2009, in eastern UP, what we currently classify as Purvanchal, the BSP had the largest vote share with about 29% of the votes. The BJP and its ally, the current ally, the Apna Dal, were way behind at 23% and the SP at 23.6%. The BSP won 9 seats, the BJP 4 and the SP 6. Quite clearly, this time, many a political commentator are not wrong when they say that Mayawati would be the principal combatant to the BJP in eastern UP. When the polling takes place, it will truly tell us if the Modi wave could be combated by the Maya mobilization in eastern UP. We shall know on the 16th of May. It was a day marked with intense political attacks, with Narendra Modi leaving no stone unturned while targeting the Gandhis. Rahul, Sonia, Priyanka. Modi left no one out when he decided to barge into Amethi today. Narendra Modi promising Amethi that he will bring change once in power. अब ये इलेक्शन कमीशन पर कसौटी है। आज मार्केट बढ़ने वाला है अमेठी का। आज अमेठी का मार्केट बढ़ने वाला है। कांग्रेस की गाड़ियां निकल चुकी हैं। गाड़ियों में माल भरा पड़ा है। कल जो 5,000 का माल था आज 25,000 में बिकने वाला है। लेकिन ये दिल्ली से निकले हुए लोगों सुन लो, ये अमेठी के स्वाभिमान के लोग हैं। इन्होंने आपको प्यार दिया, आंख बंद करके 40 साल तक दिया है और अब वो जग गए हैं। अब जग गए हैं, आपकी कोई ताकत उनको खरीद नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है अमेठी में निष्पक्ष कर चुनाव करके दिखा दें, दबाव में आए बिना करके दिखा दें। दूसरी गुनहगार है बाप बेटे की सरकार, तीसरी गुनहगार है बहन जी की सरकार। Before he set foot in Amethi, Modi addressed multiple rallies in Uttar Pradesh, testing waters in Ambedkar Nagar, Faizabad, where he launched a twin attack on what he calls the mother-son duo and the father-son duo. But what created a stir was his address from Faizabad, with the backdrop of the Ram Mandir and his reference to Lord Ram at least 5 times during the speech. के भाइयों बहनों, प्रभु राम जी की भूमि के मेरे प्यारे जवानों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए, मैं तो पूछ रहा हूं दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए। कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहाँ की पवित्र मिट्टी को
मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। 2009 में वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सुन रहे हो भाइयों, मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोगों को रोजगार का वादा किया था? 10 करोड़। कितने? मैं जरा भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, प्राण जाए और वचन न जाई, ये धोखेबाजों ने क्या किया? ये धोखेबाजों ने क्या किया? वचन दिया था 10 करोड़ को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको मां बेटे की सरकार ने रोजगार दिया हो? Coming up next, Congress flaunts the skull-cap cleric in Varanasi. Who's polarizing now? Asks the BJP. बुराई करने से हिंदुस्तान आगे नहीं जाता। आप मुझे मजबूत सरकार